Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Nur Al-Ain. Hope you all are in good health and in the best of your iman. Walaikum तो salam. हमें Abdul Hadi, you want to start? You can take over. Ji, Walaikum salam. This is Abdul Hadi. Welcome to the critical analysis session. I am assuming कि आप सबके पास ये video पहुंच गई होगी and the article, and you have watched the video. Now we are going to start straight off and हम ये video देखेंगे और हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हो रही है, किस तरीके की बातें हो रही है, और हम थोड़ी सी फैक्ट चेकिंग भी करेंगे कि जो बातें हो रही है वो सच है या नहीं, किस तरीके से बातें हो रही है और क्या प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स है. और बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग. आई वांट एवरीबॉडीज ओपिनियंस ऑन दिस. इट्स अ क्रिटिकल एनालिसिस सेशन. हम सब सोचेंगे और हम सब अपने थॉट्स शेयर करेंगे. All right, so if you guys have thoughts on my questions, we're going to be raising questions and answering those questions. So when you have thoughts, you can raise your hands and we will let you in, and let's see how it goes. All right. Can I start? Shall we start? Yeah, sure. All right. Back on the right stand with a world exclusive, ladies and gentlemen. For the first time, he's broken his silence on national television media. He's not somebody who generally speaks to the media, but a tall Tajik leader, the president in exile of Afghanistan, Shri Amrullah Saleh, joins us. Thank you for speaking with us here at the News 18 network on CNN News 18, Mr. Amrullah Saleh. Thank you very much. My first question to you, sir. How do you see the current Afghan refugee crisis brewing in Pakistan? Pakistan opened its borders for the Afghan refugees when they had a benefit in this. Their benefit was securing alliance, geopolitical alliance with the West and with the Arab world in order to fight the Soviet-backed government of Afghanistan in the 80s. Those days, an Afghan could go to Pakistan without any document. Of course, there were problems. They were causing some problems, but Pakistan kept silent because these refugees were a source of income. They were also giving Pakistan geopolitical relevance. If working with AWS Cloud is your job, then you need the ultimate AWS certificate. So Pakistan never talked about the refugee issue, and they did not establish any mechanism for registration. Okay, let's pause there. All right. Let's see what Amrullah Saleh has mentioned. He has mentioned that Pakistan has no mechanism. Did not establish a mechanism, and he also said that there was basically an open door policy और पाकिस्तान का फायदा हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने सबको आने दिया. और अब तक पाकिस्तान was silent about all of this. Can anybody tell me why? Or geopolitical reasons also he mentioned. क्या फायदा हो रहा था पाकिस्तान को? Can anybody tell me why? क्या फायदा हो रहा था पाकिस्तान को अफगान refugees को, to let in Afghan refugees in Pakistan? We have Aisha. जी वालेकुम अस्सलाम. नमस्कार आयशा जी, बोलिए. जी जितना मुझे हिस्ट्री का पता है उसमें तो ये था कि पॉलिटिकल रीजंस थी. इनको जो थे ना, वो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और उनमें जो काफी इस्लामिक हमारी कुछ जमातें भी थी जिनको एड मिलती थी. अफगानिस के नाम पे एड लेता था पाकिस्तान, और एज यूजुअल आपको पता है कि वो एड कहाँ जाती थी. तो रिफ्यूजीज पे तो ऐसा नहीं वो खर्च की जाती थी. पाकिस्तान को ये सिर्फ फायदा हो रहा था. तो उसमें हमें तो नहीं फायदा था, हमें नुकसान था उसका बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारी जो थी इकोनॉमी उस पर बहुत ज्यादा इनका बर्डन था.
और बाकी जो थे क्रिमिनल जो एक्टिविटीज थी उसमें फिर बाद में ये लोग इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिर ये स्टेप लेना पड़ा। तो दूसरी ये भी इसकी रीजन थी पाकिस्तान को, अगर आप फायदे का सिर्फ पूछ रहे हैं तो उसमें यही था कि इनको क्योंकि रिफ्यूजीज थे तो इनको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को एड्स मिलती थी, उसकी वजह से इन्होंने इनको अंदर आने दिया। और फिर एक उनको लिमिट तक नहीं रखा, उनको हमने अपने मुल्क में इन कर लिया, जो कि नॉर्मली नहीं बल्कि बाय लॉ किसी भी कंट्री में ये अलाउड नहीं होता। हर एक जो लिमिट होती है किसी रिफ्यूजी की या कोई भी आउटसाइडर होता है, वो आपको एक लिमिट तक उसको आप रखते हैं, उसके बाद उसको अपने मुल्क में वापस जाना ही होता है। कहीं भी जी। आप नहीं जा सकते, किसी भी मुल्क में आप वहां के क्या कहते हैं उसको, शहरी बन नहीं सकते। अच्छा है? आयशा, व्हाट अबाउट जियोपॉलिटिकल, उन्होंने मेंशन किया जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जियोपॉलिटिकल रीजंस आपको पता है क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल एज इन कंट्रीज के बीच में उनका फायदा हाँ हो जी। रहा है इससे। हाँ जी, इसका आपको कुछ अंदाजा है? क्योंकि उन्होंने ये भी मेंशन किया, सोवियत यूनियन भी मेंशन किया है ना। तो सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में है तो अफगानीज पाकिस्तान आने में क्या फायदा हो रहा था? अच्छा, मुझे बस इतना ही पता है कि ये जो ओके, था एड की वजह से ये जी। लोग इनको इतना दिन रखा इन्होंने। अब किससे आ रहा था ये एड? ये यूएसए से आ रहा था और बाकी जो हाँ, यूएनओ से आ रहा था। यस। तो और वही एड यूएसए देते हैं किस, हमें। हाँ, और यूएसए किसके खिलाफ था? सोवियत यूनियन। हाँ बिल्कुल। ये हाँ मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है कि आप इसको जितनी गहराई में जाएंगे आप उतना ही इसको, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन चीजें होती हैं जो कि आपको ऊपर से नजर नहीं आ रही होती, कि ये बहुत जी जी ज्यादा डीप इनकी पॉलिटिक्स है। तो जी उसमें आयशा, वही हम डीप जाने हाँ की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, Abdul Hadi, we have And- to also take जी the जी questions ओके, of all the other people. जी जी ओके आयशा, थैंक यू सो मच। विल बी मूविंग ऑन विद Let's move on to Munazza. मनजा। ओके, हो गया काशिफ? अस्सलाम वालेकुम। आंसर के पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान जब 1990 जब ये सारे अफगान रिफ्यूजीज आए थे तो पाकिस्तान को अच्छी खासी डोनेशंस मिली थी जो कि पाकिस्तान ने यूज अपने लिए की थी। अफगान रिफ्यूजीज को तो उन्होंने खैर से कुछ नहीं दिया था, वो अभी भी इधर अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी देखे तो वो झोपड़ियों में रह रहे थे। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो अफगान रिफ्यूजीज ने इन सब ने अच्छा खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाया है, इन्होंने वर्क किया है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स देखें तो इन्होंने इकोनॉमी हमारी बढ़ाई है, जिसकी वजह से उनको फायदे हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट राइट नाउ कि अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या रूल है, आई डोंट नो कि उनके क्या दिमाग में चल रहा है। Okay, Munazza, we'll dive into that too little later in the video. Okay, anybody else? Yeah, we have Sadia. Okay, Sadia. जी, आपने जियोपॉलिटिकल की बात की तो सबसे जी। पहले तो 80s में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, सोवियत यूनियन का और जो अमेरिका का प्रॉब्लम था, जी पाकिस्तान हमेशा इन सारों के दरमियान में जो है वो फंसा रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम खुद प्रॉब्लम में हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये दो मुसलमान जो में चिपके हुए हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इनकी दुश्मनी तब प्रूव होती है जब ये इसराइल के हक में फैसला दे देते हैं, और कश्मीर के बजाय जो है में हमारे बजाय ना ये इसके इंडिया के हक में वोट दे देते हैं। जब भी यूएन में हम लेके जाते हैं ना कश्मीर का प्रॉब्लम, तो अफगानिस्तान और ईरान हमारे खिलाफ वोट देते हैं, और इनको अपने साथ मिलाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। रेफ्यूजीज को रखा गया, इनको सड़कों पे बैठाया गया, इन्हें अपने इलाकों में घुसा लिया गया, इनको घर दिए गए, इन्हें कारोबार करने की इजाजत दी गई, इनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ने लग गए, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। इन्हें कहा गया आप लीगल कागजात बनाएं, तो इन्होंने नहीं बनाए। 2015 से इन्हें बताया जा रहा था कि आप लोग ये कागजात बनाएं, नहीं तो जाएं। अभी ये लोग रो रहे हैं और हमें ही बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों की ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि इंडिया के साथ रहते हैं, वो हमेशा उनके दुख दर्द का वो साथी है, और पाकिस्तान को ये अपना दुश्मन समझते हैं। और उसकी वजह ये है
कि ये क्लेम करते हैं कि आधा पाकिस्तान हमारा है, और ईरान भी ये क्लेम करता है कि आधा पाकिस्तान हमारा है। तो ये क्लेम का प्रॉब्लम है हमें। तो हमें अभी ये जंग जो है बहुत मुश्किल से सारी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। लीगल कागजात की आपने बात की, लीगल कागजात जहां तक मैंने देखा है, देयर हैव बीन रजिस्ट्रेशंस टू फॉर अफगानीज। जी, जिनको रजिस्ट्रेशंस थी उनको भी फिर निकाल दिया गया ना, क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर पे ये लोग देखें, जो हमारा बॉर्डर टुवर्ड्स अफगानिस्तान है वो इंडिया के लिए ओपन है। वो अपने कारनामे वहां से जो है ना वो आराम से कर सकता है, और थ्रू अफगानीज ही कर रहा होता है। तो अब हर किसी बंदे, लाखों की तादाद में ये लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की जा सकती। तो बहरहाल आसान तरीका यही है कि इनको कहा जाए कि मेहरबानी करें, आप अपने मुल्क जाएं, ताकि हम अपना मुल्क संभाल सकें। हमसे अपना नहीं संभाला जाए। ये बहुत वो बात बता रही हूँ कि जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं है कि 2015 से इन्हें बताया जा रहा है कि प्लीज आप लोग ये खत्म करें, चीजें अपने कारोबार समेटें, जाएं। 2015 से भी हम और भी पीछे जा सकते हैं। 1995 में भी कोशिश हुई थी, 2003, 2005, 2006 में भी कोशिशें होती जा रही, बट दे कुडंट फिगर आउट, या वो जो उनके इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो हमारा बॉर्डर है, जो बहुत मुश्किल बॉर्डर है, जिसपे अभी कहीं ये वजीरिस्तान की जंग जब हुई तो वहां पे हमारी आर्मी गई, आर्मी ने वहां चौकियां बनाई और फिर उस बॉर्डर पे काम हुआ। अभी तक वो बॉर्डर बहुत सारी जगहों से ब्रीचेस हैं वहां पे, तो आर्मी के लिए मुमकिन नहीं है कि इतने ज्यादा एरिया पे फौज बिठाई जा सके। तो ब्रीचेस अभी भी वहां पे मौजूद हैं और हमें Okay, let's any more points? If we can take more points here. Anybody else? Yeah, we have three more people. We have three more people. Well, let's go a little deeper into the video and then we'll take those three people. Because it's just the beginning, Abhi. बस बहुत है। Hello. जी, इमरान। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहूंगा इस हवाले से। जैसे देखा जाए ना, तो अगर हम इसको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो हम जितने भी ममालिक है ना, ये सारी जो वॉर हो रही है ना, ये पावर की वॉर है। और अगर आप उसको इस मानों में लेके चले ना कि एक शतरंज की बिसात है, जिसको लीड या जिसको होल्ड या जिसको वजीर करता है अमेरिका, और उसको हर जितने ममालिक हैं उनको अपनी मर्जी से इस दुनिया में वो चलाता है। सिर्फ हम ही नहीं, आपके ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं, उनको भी अपने हिसाब से जिस तरह मोल्ड करना होता है। तो ये पाकिस्तान भी एक शतरंज के मोहरे से बड़ी हमारी इज्जत है, ना औकात है, और ये उनको भी पता है इन चीज का। ये कोई अचानक ही को वक्त नहीं आया, ये 20-25 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं कि अचानक ही इनको निकाला जाए। कोई भी मुल्क, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम जो है ना, वो अमेरिका की मर्जी या उसकी मंशा के बगैर नहीं होता। इसमें जहां भी अमेरिका का इंटरेस्ट होता है ना सर, वो चीज तभी डिप्लॉय होती है, वरना तो अगर अपने मुल्क की खातिर काम करने होते तो हमारा मुल्क तो पता नहीं कहाँ से काम हो चुका था इस वक्त तक। अपने मुल्क के लिए, यहाँ अपने इंटरेस्ट के लिए तो आज तक कभी कोई काम ही नहीं हुआ। आप शुरू में देखें तो सोवियत यूनियन के लिए इन्होंने हम लोगों को यूज किया, इन्हीं लोगों को हम अपना बना के ट्रेन करके उनको मिलिटेंट्स बनाया गया, फिर उनको यूज किया गया। रशिया के खिलाफ जब वो रशिया को तोड़ दिया गया, मिलिटेंट्स को आजाद कर दिया, बाद में इनको तालिबान का नाम दे दिया गया, फिर इनके खिलाफ दोबारा बंदूकें उठा ली गई। अब वहां पे 2 लॉबीज बना दी गई अफगानिस्तान के अंदर। तो बेसिकली कहना ये है कि हम लोग ये अभी भी, ये लोग काफी अच्छे से पाकिस्तान में, पहली दफा नहीं है, कई दफा कोशिश कर चुके, लेकिन ये वाला स्टेप उठाना ये भी इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको मोल्ड करने के लिए, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, या उसको, क्योंकि कोई जरूर जब 25 सालों में इतनी इन लोगों की तरफ से नहीं हुआ कि अचानक देखिए 1 साल 2 साल पहले अगर आप देख लें, मैं किसी बाइस नहीं होना चाह रहा, किसी पार्टी की तरफ नहीं मैं मोल्ड हूँ, मैं सिर्फ जैसे बात करना चाह रहा हूँ। पहले हमारे मुल्क के हालात खराब थे, पीटीआई के दौर के अंदर कम से कम एक फायदा हमें ये हुआ था, ड्रोन अटैक्स बंद हो गए थे, तो हमारी तरफ से जो ये जो तो क्रॉस बॉर्डर काफी चीजें कम हुई थी। हमने एक एफर्ट की तालिबान को वहां पे लेके, तो जो हमारा एंटी रिजीम था वहां पर अफगानिस्तान में, वो खत्म हुआ, और हमारा जो पॉजिटिव इमेज हमारे अपने जो जिनसे हम कंफर्टेबल फील करते थे तालिबान, उनकी हुकूमत वहां पर आई। अब ये उस वक्त तक बेहतर था जब वहां पे ट्रंप की हुकूमत थी और यहाँ पे इमरान खान थी, तो एक दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में मिली।
वहां पे भी आप देखें जो कुछ यहाँ इमरान खान के साथ हो रहा है, बिल्कुल वही चीज वहाँ ट्रम्प के साथ हो रही है। तो इवन वहां पे भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। उन्होंने उस नजरिए को या उस अप्रोच को जो कि ट्रम्प लेके आया था कि अमेरिका विल फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, उसके बाद कोई और चीज आएगी, तो उस पे उन्होंने कहा कि जी हम पैसा बाहर क्यों खर्च कर रहे हैं, अपने अपने अमेरिकन पे क्यों नहीं खर्च करते। इमरान खान ने भी ये तासुर दिया था। तो वो चीज उनकी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां उन्होंने उसकी रिजीम को चेंज कर दिया गया। अब उस बंदे का जो अमेरिकन प्रो था उसको उन्होंने साइडलाइन करने के लिए उसके बिल्कुल उसी तरह के मुकदमा जिस तरह इमरान खान पे चल रहे हैं वहां पे डाले। अब उस सिनेरियो को, अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान में जितना भी कर लें, इमरान खान को जितना ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो ज्यादा और पॉपुलर होता जा रहा है। तो इवेंचुअली दे आर क्रिएटिंग, वो इस तरह की प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों की तरफ जो, अब देखें ना, अचानक क्या हुआ कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लपेट में आ गया। आज से 1.5 साल पहले तो नहीं था। अभी हालांकि उस वक्त तो तालिबान का इखराज हो रहा था वहां से। आप इमरान भाई ये पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो रीजन वो लोग ये लोग दे रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज को निकालने के लिए कि सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। दैट्स व्हाट यू मेंशनिंग, राइट? एग्जैक्टली। और ये सब जो है ना कि ड्रामा है। अगर ये सिक्योरिटी के 2 शख्स होने चाहिए थे ना, जब वहां से तालिबान के अंदर रिजीम चेंज हो रहा था, वहां कंफ्रंटेशन देखें। आप देखें, मुझे एक बात बताइए, हम मुल्क जो है ना बहुत बुरे तरीके से यूज, चाहे ईरान के अंदर कभी आपने सुना दहशतगर्दी? वो अपनी वार अपने मुल्क में नहीं लड़ रहा, वो हमारे मुल्क में लड़ता है। इसी तरीके से हर मुल्क की जो हम जो है ना वो महवर है, हर मुल्क की वार का हमने ठेका लिया हुआ होता है और हम लोग यूज्ड हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हम हमारी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, बेचारों के तो इख्तियार में कुछ नहीं होता। ये तो जो हमारी मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं ना जो लोग, ये बेसिकली Okay, Imran bhai. Okay, Imran bhai, that good points. No, you had good points. Jazakallah. Okay. Anybody else? I think let's continue in the video and we'll take more video questions. continue करें and we will Yeah, let's move on. There are a lot of things to cover, okay? So the Afghans settled there in various ways. Came the 90s. In the 90s also Pakistan used these refugee camps as recruitment centers to destabilize Kabul. So the refugees were never economically a burden, and they were never a security trouble for Pakistan. Instead, they were an asset. But let's also not forget what is the definition of the refugees. Many hundreds of thousands of Afghans have kinship relations in Pakistan. They are not necessarily refugees. Now, as to why Pakistan has chosen this particular time for forceful eviction, let me give you some of the facts that we have. Okay, so he's mentioned 2 points here, that number 1, they were never a burden, and number 2, there was never अब्दुल हादी, आपकी आवाज नहीं आ रही। think it's gone. Abdul Hadi, can you hear me? Maybe there has been some problem. Yeah. ठीक है, तो meanwhile I think हम फहमिद को ले लेते हैं what he has to say. Okay, Fahmid, I have sent you a request. अच्छा, ये भाई अभी सिस्टर ने कहा था ना, तो पहले हमें बॉर्डर समझने चाहिए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो वो वाला बॉर्डर है ना, चमन वाली साइड का और अदर्स का, तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं चमन के। तो एक तो ये कि इनकी हर बार के ना ये चक्कर होता है कि स्मगलिंग,
वो बहुत बड़ा इशू है, इशू तो है, लेकिन अभी इस टाइम पर करना जो भी पीछे भाई ने बात करी थी वो पॉलिटिकल रीजन है। ये तो इस तरह से बात है क्योंकि अब अचानक क्या हो गया, कोई तरीकेकार होता 6 मंथ दे देते, साल दे देते कि भाई अब आपने जाना ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी एक चीज, इनके जाने से अभी कुछ गए तो हमारे यहाँ पे जो इलीगल जो ईरान से स्मगलिंग होके चीजें आती थी वो आती चमन बॉर्डर से ही है। तो इस चीज का भी हमें अभी देख रहे हैं कि मार्केट में वो चीजें नहीं है। मेरे दोस्त ने दुकानों में मिला, भाई ये जो इलीगल सिगरेट्स वगैरह जो आ रही है कहाँ है? बोला भाई पाबंदियां, दोबारा बोले इनको भगा रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो अफगान रेफ्यूजीज है ना, ये अर्ली 80s से ही ये सिलसिला शुरू है, लाइक अराउंड 40-45 ईयर्स अगो। ठीक है जी जी। इसमें 3 तरह की वो किस्में हैं लाइक अफगान रेफ्यूजीज पे। एक वो जो 1980s में आए थे, लाइक इट वाज मेंशन सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी जी जी वो ऑक्यूपाई किया था। एक वो है जो 1992 में आए, लाइक उन्होंने क्या किया था, ये जो गैबुद्दीन हिकमत यार और उसकी फोर्सेस थी जो नॉर्थन एलाइज है ना, तो उन्हें जब उनके बीच में जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो वहां से बहुत सारे लोग 92 में जो है निकल के हमारे पास आए थे। ठीक है, और ठीक है। एक तीसरा ग्रुप वो है जो अभी अगस्त 2021 में आया है। ठीक है, और इसमें इनकी मेजॉरिटी 2 से 2 लाख है। और आपको तो पता है इस अगस्त 2021 में क्या हुआ था? जी जी, लिबरल लोग वहां से जाना चाह रहे थे ना, जहाजों में भी ये चढ़े थे अमेरिका। तालिबान टेक ओवर जो हो गया था जी जी 2021 में, हाँ। तो उसके अच्छा, बाद जो ये लोग आए हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो ये लड़ाई हुई थी उसके दौरान ये भी रिपोर्ट थी, अभी क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हैं कि $1 अगर अमेरिका देता था तो $1 सऊदी अरब भी देता था तालिबान को कि तोड़ो सोवियत यूनियन को। इस तरह की मतलब कि जब हमने किसी को बिल्ड करा है, जब काम खत्म हो गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो तो आपस में लड़ेंगे, तुमने इतने सारे जो तैयार कर दिए। तो ऑब्वियसली वो सब तो अपने बेनिफिट्स के लिए वो सारी चीजें नहीं, करेंगे। अब वो जो टीटीपी है, ब्लैक वाटर है, और एक और जो क्या नाम है उसका, एक और तहरीक इसी तरह की, वो यही है किसी को भी बम मार दो वो बोल देते हैं हाँ हम कबूल कर लेंगे। तो ये तो काम करेंगे ना, अब इनको तो काम ही नहीं है इनके पास। तो वही बात हुई थी ना, यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो हैं अफगानी लोगों को कि आप अपनी टीटीपी को कंट्रोल करें। और इनफैक्ट तब जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें शाबाशी भी दी थी और मुबारकबाद भी दी थी, और ये भी कहा था, इम्प्रेशन लीव किया था कि ये जो आपने टेक ओवर किया ये हमारी वजह से हुआ है। लाइक जी ये जी इम्प्रेशन हमारा है। फिर दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, कहते हैं कि उन्हें कि टीटीपी को कंट्रोल करें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट यहाँ से बहुत सारे प्रिजनर्स टीटीपी के जो है वो रिलीज करती हैं, स्पेशली दोस्त जिनको डेथ सेंटेंस हुआ है। ठीक है, वो यहाँ से रिलीज होते। तो ये मतलब डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? डोंट यू थिंक दीस आर डबल। डबल स्टैंडर्ड्स इवन फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान? लेकिन इसमें जो आप जो बात करी ना, ये न्यूज मेरी आंखों से भी गुजरी है, तो उसमें वो कह रहे थे कि इनमें कुछ अच्छे लोग भी थे इनके बकौल के बोल रहे हैं, जो मतलब कि और बड़े बड़े थे जो टीटीपी को रन करते ना, तो पाकिस्तान ने उनको पकड़ा हुआ था। तो तालिबान ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इनको छोड़ दें, ये हमारे साथ उस तरह से थे, हमारे अलाइज थे, इन्होंने बड़ी एफर्ट करी है हमारे साथ लड़ने में अमेरिका के साथ ना। तो वो लोग थे आई थिंक सो, वो नहीं थे जो टीटीपी के दूसरी तरह जो पाकिस्तान के लिए ट्रबल खड़ी करते हैं ना। लेकिन यस, लेकिन सब उसी जुमरे में आते हैं ना, हाँ, जुमरा तो सबको एक ही फिर है वो ना। कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस सबको करने पड़ते हैं। जी सो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स इवन क्रिएटेड बाय आवर ओन गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, हाँ। और और अब्दुल हादी, डू यू वांट टू कंटिन्यू? Okay, let's continue with the video. I've learned. Fact number one is Pakistan always wanted a strategic depth in Afghanistan, and the definition of the strategic depth was empowerment and installation of a pro-Pakistan group in Kabul. Mr. Saleh, according to media reports and what Okay. Did anybody notice abhi kya hua? He just started, we were just talking about, Amrullah Saleh was talking about why Pakistan has just started throwing out Afghans, and he listed his first reason.
And then the reporter took on. Did anybody notice क्या हुआ यहाँ पे? अब्दुल आप इसे ना थोड़ा उर्दू में भी बता दें, लाइक सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। सॉरी अभी यहाँ पे अमरुल्लाह साले कह रहे थे कि पाकिस्तान अभी अफगानी रेफ्यूजीज को क्यों निकाल रहा है पाकिस्तान से, और उन्होंने पहला उनका रीजन स्टेट करना शुरू किया था. If you can watch it again, okay? A strategic depth analysis. So why Pakistan has chosen this particular time for forceful eviction? Let me give you some of the facts that we have learned. Fact number one is Pakistan always wanted a strategic depth in Afghanistan, and the definition of the strategic depth was empowerment and installation of a pro-Pakistan group in Kabul. Mr. Saleh, according to media reports and what we see... जी, क्या हुआ अभी यहाँ पे? Okay, we have some hands raised, so I will unmute Muhammad Ahad. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर आ रही? अभी नहीं आ रही? नहीं, डिस्टॉर्शन काफी है। अच्छा, फिर ये मेरे एयरपोर्ट का मसला। अच्छा, मैं इसको एयरपोर्ट से हटा देता हूँ। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, खुद मैं बोल पाऊंगा, आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा अगर आप लोग आपकी बात समझ नहीं आई। अगर आप कमेंट में लिख सके, that would be helpful. I will unmute the next person, Shanza. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आहद आवाज। अच्छा, वो असल में एयरपोर्ट्स का मसला है मेरे ना, तो ये है। अच्छा जी, एक्चुअली मैंने ईमानदारी की बात है, ये टॉपिक देखा तो मैं आ गया इस ग्रुप पे, मतलब इस मखसूस मीटिंग में। और उसकी वजह ये है कि इत्तेफाक से जो मेरा पीएचडी है वो अफगानिस्तान के ऊपर ही है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो ज़रा मैं बर्ड आई व्यू से देखता हूँ, जुज़ियात से भी देखता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी यूनिट्स में भी देखा जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ों को बर्ड आई व्यू होता है ना, एक उस तरह देखता हूँ। जी बोलिए। ये अफगानिस्तान का जो इशू है, इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। देखिए, मैं एक ग्रुप पर हूँ, कासिम नाम है उस ग्रुप का ना, कासिम करके ग्रुप है, IMS का ही ग्रुप है, उसकी ग्रुप लीडर शायद अकीला है, कौन है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सवाल ये, मैं उधर भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि अल्लामा इकबाल का वो बड़ा मशहूर शेर है ना, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो इसका पहरन है वो मज़हब का कफन है। सही है, ये शेर अल्लामा का है। इसमें अल्लामा ये कह रहे हैं कि वतन जो है ना वो सबसे बड़ा हो गया है, और एक्चुअली जो मज़हब का जो लबादा होता है ना, वो जो उम्मत बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, उसका वो कफन बन चुका है। अब सवाल सारा ये यहाँ पे पैदा होता है कि अभी जो ये रिसेंट इशू हुआ अफगानिस्तान का, और ये जो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने इनकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। सामने जो है वो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कोई इंडियन साहब है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा। मतलब आप रिपोर्टर की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, जो एंकर है। जी, एंकर, हाँ, एंकर इंडियन, यस। अच्छा अच्छा, तो बस वो, अब आपको सोच समझ जाए कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है और देने वाला क्या इंटरव्यू देगा और क्या सवालात किए जाएंगे। तो ये तो आप आंखें बंद करके बगैर उसके भी आप सारे सवालात खुद ही वो कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि एक ट्रीटी हुआ 1648 में, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, यूरोप के अंदर। उस ट्रीटी में ये साइन किया गया कि यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा जंगें लड़ चुका है, तो अब हम ये करते हैं कि नेशनलिज्म को क्रिएट करते हैं। उस जमाने में यूरोप की पूरी बढ़तरी होती थी, यूरोप को पूरा, यूरोप पे अपनी बढ़तरी साबित करनी होती थी, तो हर कोई दूसरी जगह पे इन्वेट करता था। जर्मन इंग्लैंड पे इन्वेट कर रहे हैं, डच कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, और फिर वो पूरे यूरोप पे हुकूमत करते थे। 1648 के बाद ये किया कि भाई बहुत ज्यादा हमने जंगें लड़नी है, अब एक नेशनलिज्म का नजरिया क्रिएट करते हैं। उस नजरिए के तहत ये होगा कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारी तरफ और हमारा मुल्क हमारी तरफ। ये बज़ाहिर वेस्टफालिया की जो ट्रीटीज में है, ये एक आसान उसमें बता दिया
लेकिन इसके पीछे जो कारफरमा थे ना, जो सोच कारफरमा थी, वो सल्तनत उस्मानिया को, या मुसलमान जो एक खिलाफत राशिदा से लेके सल्तनत उस्मानिया तक एक बड़ी पावर थे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हुए आ रहे थे, तो उसको भी तोड़ना इनके जहन में उस वक्त मौजूद था। अच्छा, फिर ये कहानी चलती है 1923 पे आके ख़त्म होता है जब सल्तनत उस्मानिया का टूट जाती है। अच्छा, हुआ क्या कि इसमें नेशनलिज्म को इतना ज़्यादा क्रिएट किया गया कि असल में सारा काम जो हुआ ना, ये मुसलमानों के लिए हुआ। देखिए, जो वेस्ट है ना, उसको मुसलमानों का रेडिकल इस्लाम नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि मजहब, हाँ, नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, अपने अपने मुल्कों में रहो, ये सही है। जैसे अक्सर लोग आपको इवन टीवी, पाकिस्तान टीवी पर भी नजर आ जाएंगे, बहुत सारे सियासतदान, आप एंकर भी बोल रहे होते हैं। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि मैं बिहेवियरल बात कर रहा हूँ, पर्सनल किसी से भी नहीं हूँ मैं। एंकर जाके बोल रहे थे, भाई आप मजहब को कहाँ लिया है उसमें, सियासत में, ये तो अलग बात है, आप क्यों घुसे रहना है, नमाज पढ़ना फला की जो इनफरादी मसला है। हालांकि नमाज इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाती है और नमाज को हमारा इनफरादी मसला है। चलो खैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपके यहाँ इन्होंने कहा कि सियासत और मजहब अगर एक साथ चलेंगी, इनका खिलाफत का कॉन्सेप्ट दोबारा उभर के आ जाएगा। अल्टीमेटली आना तो है अहादीस मुबारका की रोशनी में, लेकिन अभी तो जितना सप्रेस करना है करो। इन्होंने कहा अगर हमने इनको इज्तिमाइयत और सियासत और मजहब, इनको अगर हमने एक ही लाइन में कर दिया, एक ही इसे प्लस कर दिया, जोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, दोबारा जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट है वो उभर के आएगा। इसलिए 1923 के बाद और 1947 के बाद जो कुछ बचा कुचा था, सब कुछ तोड़ ताड़ के मुल्क बना दिए। इन्होंने कहा कि हर कोई अलग अलग रहेगा। अब सेम सिनेरियो अब अफगानिस्तान के ऊपर ले लें। देखिए, मैं अगर हमारा वो कॉन्सेप्ट होता उम्मत वाला, अब मेरी बात समझिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा, अगर हो तो मैं पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मुझे इशू नहीं है कोई। अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान का जो इशू है उसमें सिंपल सा ये बताया गया कि आया ऊपर से हुक्म। देखिए, हमें पता है कि हम लोग जो है ना, अगर आपके जहन में ख्याल है कि आप आज़ाद मुल्क है, तो भाई माजरत के साथ आप लोग बेवकूफ़ हैं। अगर मैं भी ये समझता हूँ तो मैं भी बेवकूफ़ हूँ, आप आज़ाद हैं। क्योंकि आज़ादी की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। हमारी यहाँ आज़ादी की डेफिनेशन ये हो गई है, जैसे अरबों के अंदर है, अरब कंट्रीज में बादशाहत है, लेकिन आप बादशाहत के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। सही है। आप जमहूरी, अब क्या हुआ कि जमहूरियत को आपका निज़ाम मुतारिफ कराया गया, क्योंकि जमहूरियत में, मैं जुमला बड़ा सख्त बोले, मैं बेटा बात कर रहा हूँ अभी मैं। जमहूरियत में एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है ना, अब देखिए आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, हर गधे घोड़े को एक ही रेस में दौड़ाया जाता है और हर गधे घोड़े को, कुत्ते बिल्ली को वोट डालने की इजाजत होती है। पर्सनली जमहूरियत जो निज़ाम है, अगर आप उसकी ओरिजिन पे जाएंगे ना, तो वो मिलेगा यूनान से, आपको अरस्तु से मिलता है। तो जो अरस्तु ने इसके ऊपर डिफाइन किया, वो अगर मैं डिफाइन करूंगा थोड़ी लंबा हो जाएगा कि अरस्तु ने जमहूरियत के बारे में क्या कहा है, वो छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि हम जो है ना, वो जमहूरियत के मामले में हमें जमहूरियत मुतर्रफ कराया गया। जो बेहतरीन दुनिया के मुल्क हैं, खुद वो कनाडा के अंदर, खुद वो इंग्लैंड के अंदर, हमें रस्मी तौर पे रखनी है। कस्टमरी बादशाहत होगी, लेकिन बादशाहत होगी, क्योंकि वो बादशाहत को रिलीजियसली जोड़ते हैं। उनके लिए बादशाहत का मामला रिलीजियसली है। उनके नजदीक ये है कि मामला के बादशाहत जो है ना, वो हमारी जो सियासी निज़ाम है, यानी कि जो हमारा पार्लियामानी निज़ाम है, वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारी बादशाहत कायम रहेगी। और ये उनकी कलीसाई, जो उनके कलीसा की जो पूरी हिस्ट्री है, उनकी क्लर्जी की जो पूरी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड है। ये भी एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आ जाए ये अफगानिस्तान मसले पे। देखिए, अगर मेरा खिलाफत का कॉन्सेप्ट जिंदा है मेरे अंदर, तो मुझे अफगानों को बाहर भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला सारा नेशनलिज्म का है ना। मैं, आप भी और मैं भी, हम सब मटेरियलिस्टिक हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर नाम को नहीं है। तज़किया नफ्स को हमने बहुत छोटी चीज समझ लिया। हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को बहुत छोटी चीज समझ लिया। हमने समझ लिया कि ये काम से तबलीगी जमात करेगी, दावत इस्लामी वाले करेंगे, बाकी हम सब तो क्या है, मैं तो 9 to 5 जॉब करूंगा, खत्म। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर भी हैं, तब भी आपका ये फर्ज है। आप एक सिंगल एंटिटी में काम कर रहे हैं, तब भी आपका ये फर्ज है। जी, आप सवाल ये कॉन्सेप्ट हमारे जहनों से खराब कर दिए। आप थोड़ा सा और आगे गेट योर पॉइंट, आपका आप गुड पॉइंट्स। चलो, अच्छा, सही, ओके डन। आप समझ में आ गई काफी। And एक मिनट, just before we go on, I would like to tell everyone that this is critical analysis, and every minute of this session has to be related to critical analysis. We cannot let our emotions get on top of our logic and rationality. नहीं, I'm not pointing you out. बात सारी है, मैं आपको बता दूं, बाकी बस ये क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन मैं थोड़ा सा मजहब के मामले में जज्बाती हूँ, हमें होना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल It's fine. And emotions are not wrong, but
After my comment, नहीं, आपकी बात बिल्कुल एक्चुअली जो आप अमीर हैं, जो भी इस ग्रुप को लीड कर रहा है, जो कर रहा है, वो उसकी बात सबसे अहम है। अमीर सबसे अहम होता है। नहीं, देखिए हम यहाँ पे अभी एक पर्पस से ये मीटिंग कर रहे हैं टू जी बिल्कुल मैं इस पे कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है। अगर आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है तो ओके, बट आपकी बात सही है, बट यहाँ पे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, दुरुस्त। Yes, Abdullah, if you have anything related, आपके पास जो knowledge है refugees से related, क्योंकि आपने कहा आपका PhD है, right? जी। In Afghanistan studies, अगर refugees के हवाले से कोई भी आपके पास information है, that will be relative here, valid. आप पे सवाल कर लें कोई, अगर ऐसी कोई सवाल के जहन में है आपके तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, अगर रेफ्यूजी से रिलेटेड कोई बाकायदा सवाल है। अच्छा देखिए, मैं तो कराची में रहता हूँ, तो मेरे घर जिस जगह मैं रहता हूँ, मेरे घर से करीबी इनका दोनों महाजिर जो अफगान महाजिरीन कैंप है ना, वो दोनों मेरे घर के बिल्कुल राइट और लेफ्ट पर है। मैं उनके बीच में रहता हूँ, मेरा घर ऐसी जगह पर है। तो मैं तो अपनी आंखों से ये पूरे सीन देख रहा हूँ जो मौजूद है इस वक्त। मतलब मैं आई विटनेस हूँ कि मेरे राइट पे क्या हो रहा है और लेफ्ट पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा रास्ता वही है सुबह शाम गुजरने का। तो रेफ्यूजीज की हालत ये है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ से कराची से बता रहा हूँ आपको मैं, कराची से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये पॉइंट रेलेवेंट होगा जो बता रहा हूँ? जी आदम भाई, ये रेलेवेंट है तो बता दो, वरना मैं रुक जाता हूँ। थोड़ा सा क्विक कर लीजिए। अच्छा, कोई कर लेता हूँ। इनका ये है कि हमारी जो लोकल पुलिस है ये इससे फायदा उठा रही है। इसमें ये हो रहा है कि आपके जो पैसे लेकर भी रिफ्यूजीज को उन्होंने रोका है, मतलब ऐसे जिनके कार्ड्स ही बनाए, ऐसा भी हो रहा है कि जाली कार्ड्स बनाकर उनको रोक रहे हैं, रास्ते दे रहे हैं। जो यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो नहीं कर सकते, उनको बाहर भेजा जा रहा है। सिंपल ये पॉइंट, यहाँ पे रेफ्यूजीज का जो एक्सप्लॉयटेशन है वही हो रहा है। और मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ कि जब आप ताकतवर को जा बस खत्म। ओके, दैट्स गुड पॉइंट्स। आप फीडबैक फॉर्म में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके Okay, do we want to move on or do we want to take more questions? Move on for now and we'll move back to the questions, inshallah. All right. On social media, Pakistan is actually throwing Afghans who have been there for decades. Their properties, even the wealth that they have created has all been seized. Your take? Well, we see two things. We see the official statements from the Pakistani authorities who are claiming that this campaign is targeting undocumented, unregistered, quote-unquote aliens. But the reality is, we are also seeing, as you said, confiscation of the Afghan properties, Afghan businesses, harassment of the Afghans, knocking their doors, bursting in their homes, not respecting sanctity of the families, putting children and women and elderly, regardless of their health situation, on back of the lorries, driving them to the open fields named registration centers and throwing them out of Pakistan in the worst way one could imagine. I did do a little research to find some historical cases similar to this. I could not find it. Not find similar. Mr. Saleh, okay. Here he has mentioned कि he has done some research. उन्होंने कुछ रिसर्च किया है और इस तरीके से दुनिया में कभी कुछ इसी तरीके से इससे सिमिलर इसके वैसा कुछ सिनेरियो उनको कभी नहीं मिला। Any thoughts on this? क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है? Do you think this is that's what he's saying? Does anybody have any thoughts on this particularly? You can raise your hand. Let's take the comment from Shanza. And after that, Abdul gives something. Assalamu alaikum. Actually, I have a point in the previous comment as well. आपने पूछा था कि वहाँ पे क्या नोटिस किया जब रीजन दी थी। जस्ट आई एम मेकिंग दैट क्विक एज पॉसिबल। कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज चोजन पर्टिकुलरली दिस टाइम फॉर दैट फॉर दिस इवैक्यूएशन एंड ऑल दिस प्रोसेस। तो उस पे एक रीजन जो उन्होंने दी और उसके बाद फौरन से उनको कट कर दिया। दैट मीन्स कि उनसे सिर्फ अपनी मर्जी का वो आप ले रही हैं इनपुट,
और जहाँ पे लग रहा है कि अभी वो जो है ना फर्दर इनके अगेंस्ट जा रहा है या समथिंग लाइक दैट जो उनके लिए आज से फिशी है, तो उसको वो जो है वो सेंसर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड जो है इसमें जो अभी नोटिस की है मैंने, जो ये वाला क्लिप था कि ही हैज नेवर सीन दैट। आई वांट टू आस्क दैट पर्सन कि आपने कितनी रिसर्च कर ली, अभी आपको गजा में क्या सिचुएशन नजर नहीं आ रही है? लाइक इनको ये जो यहाँ पे इस पे चैनल पे अभी बैठ के ये बात कर रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज की, एंड कोट इन कोट आई थिंक बट आई माइट बी रॉन्ग, बट एक तरह से ये रीजन ये भी दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इस लिहाज से गलत प्रूव करना एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उस तरह से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेम सिचुएशन दे आर कैरिंग आउट इन गजा। तो एक तो मेरा ये पॉइंट भी है। तो लाइक ये जो इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की है ना, लिटिल रिसर्च, वो उसमें उसका थोड़ा सा और भी इनको करनी चाहिए रिसर्च। दैट वाज माय एनालिसिस। Okay, well enough. Okay, we can move on with the video. There is very specific intelligence input that Pak. Okay, that's mad. ISI wants to deal with the. Find it, not similar. Mr. Saleh, there is very specific intelligence input that Pak ISI wants to deal with the Taliban against these refugees. They actually want to control the Durand Line and somewhere run their terror camps in Afghanistan. Your thoughts? Now we have to look at it, not based on one single input. Number one, until installation of Taliban in Kabul, it always suited the Pakistanis to let this line be porous, because they were using the refugees as a recruitment pool to train them in militancy, train them in madrasas, use them against Afghanistan, use them against when NATO and US troops were there. So despite international call from 2001 to 2021 on Pakistan to control these flow of people, they would cite reasons. Okay, these are porous borders, people on both sides of the line or of the same people. We do not know who is Taliban, who is not Taliban. All Afghans put turban, we cannot distinguish. Those very nonsense, simplistic articulation were given to the Western consumption. But in reality, they had given a space and protection for the Quetta Shura, which served as the Politburo and High Command Center of the Taliban for 20 years. They harbored Haqqani for 20 years and allowed him and his family to run some of the biggest businesses in Rawalpindi, in Islamabad, and Peshawar, and Karachi. But they used to say we cannot find them. Of course, we knew they were being protected. And even today, as they are talking about the expulsion of the Afghan refugees, they are not touching those who are linked to the Taliban leadership, whether they have documents or not, whether in the past they were part of the IED industry, improvised explosive devices industry that Pakistan is sponsored or not. They are not touching. As I said, they are targeting the most vulnerable, the most insecure part of the refugees in order to gain concession. Again, gain concession from the international community and gain concession from their puppet in Kabul, and sort of tell the Afghan people that, this was painful, this was tragic, but it had to be negotiated. But remember, the Taliban have no political legitimate stand. Okay. अब यहाँ पे रिपोर्टर का क्या सवाल था और उन्होंने जवाब क्या दिया है, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया. बट लेट्स फोकस ऑन व्हाट अमरुल्लाह सालेह has said. He has also said, उन्होंने ये भी कहा है
कि पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, और ये पाकिस्तान कहता रहा है कि हमें पता नहीं कौन कहाँ पे है, कौन अफगान रेफ्यूजी है, कौन अफगान रेफ्यूजी नहीं है। और अब पाकिस्तान बेसिकली जिनसे तालिबान का जिससे लिंक है, उन्हें नहीं निकाल के, उन्हें निग्लेक्ट करके, जो गरीब है, जो डेस्टिट्यूट्स है, उन्हें निकाल रहा है। डू वी हैव एनी थॉट्स ऑन दिस, or anybody, or anything else that we said? Can we take some thoughts? Saira has her hand raised. जी सायरा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। काफी चीजें तो डिस्कस हो गई हैं। मुझे जो फील हुआ था आर्टिकल पढ़ के भी और ये इनका इंटरव्यू देख के भी, मैंने एक्चुअली थोड़े अरसे पहले ढाका फॉल पे रिसर्च की थी, तो मुझे उसी तरह का सिनेरियो ये लग रहा है काफी ना अफगानिस्तान का, कि बेसिकली इन्होंने 2020 में ये हुआ था, वो हमने खुद भी देखा था कि इस्लामाबाद के सारे होटल्स और बड़ी जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो सारे ऑक्यूपाइड बाय अफगानीज थे। वो कौन अफगानीज थे, बाद में ये सुना, मैंने इस पे रिसर्च तो नहीं की, लेकिन ये सुना कि वो लोग थे जो अमेरिकन एजेंट्स थे और जिनको ईरान में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, इलीगल थे या कुछ था इस तरह का, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ऑक्यूपाई कर लिया। उससे ये हो रहा था कि लोकल्स जो हैं उनके बिजनेसेस फ्लॉप हो रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज पे उन्होंने टेक ओवर किया था, तो इसलिए इन्होंने अब ये एक्शन लिया है। शायद ये एक्शन इनका ठीक हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन मसला सारा वहां पर आता है कि जो पुअर लोग, जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो बेचारे पुअर हैं, और जो हमारे इकोनॉमी में जिनका बहुत बड़ा किरदार था कि वो लो वेजेस पे जो है वो बहुत मेहनत वाले काम करते थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनको ट्रक्स में जिस तरह भरा गया, एनिमल्स की तरह उनके साथ ट्रीट किया गया, वो बहुत भर के लेके चले गए और फिर वहां बॉर्डर पे छोड़ दिया, बस दैट्स इट। छोड़ दिया। अभी सर्दी, वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी है और लोग बॉर्डर पे, तूरखम बॉर्डर पे इतनी सारी फैमिलीज जो हैं वो रह रही हैं, एक उनके पास एक चरपाई है और थोड़े से कपड़े हैं, और बिल्कुल कुछ लोग तो बिल्कुल खुले आसमान तले बैठे हैं। ये बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और दूसरा, मैं जो ढाका फॉल की बात कर रही थी ना, उस वक्त भी वहां पर भी यही हुआ था कि इन्होंने इग्नोर किया और लोगों, दोनों तरफ के लोगों के दिलों में, इधर पाकिस्तानियों के दिलों में बंगालीज के खिलाफ नफरत डाली, और उधर जो है ना वो बंगालियों को इन्वोक किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर भी इसी तरह का हो रहा है कि और फिर ये भी कह रहे हैं कि तालिबान ऐसे हैं और लोग इस तरह के हैं, अफगानीज ये करते हैं, चोरियां करते हैं, उनकी वजह से डॉलर अप हो गया था। अब आप ये बताएं कि अफगानिस तो अब जा रहे हैं, तो आपके पास स्मगलिंग में कितनी कमी आई, या आपके डॉलर्स कितना डाउन हुआ, या इवन आपके महंगाई में कितनी कमी आई? कोई इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं। और चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन में इनको अपने लोगों को लेके आना है, ये बहुत डीप पॉलिटिकल गेम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला सारे ये। आप ये बताएं कि हम लोग क्या करें? हम लोग ना फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं, ना हम गवर्नमेंट तक कुछ कह सकते हैं, और हम क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के। तो देखिए, आई थिंक वो जो पहले आपने दो चीजें कही जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका पहला स्टेप हमें तो फिलहाल लगता है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस कर पाए पहले, इसलिए हम यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके हम फॉरेन पॉलिसी भी बनाएंगे, और we are educating ourselves as of now. This session is focused on that. Any more points? नहीं, बस कि ढाका फॉल की जो स्टोरी थी, मुझे लग रहा है कि उसी का रेपिटेशन हो रहा है, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकले हैं और इसके भी नहीं निकलेंगे। और हमें जो है ना वो बिल्कुल लोकलाइज किया जा रहा है कि जब हमारे ऊपर, अल्लाह ना करे, लेकिन फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर भी अटैक होगा। कहाँ से होगा? अमेरिका करेगा, रशिया, कोई भी कर सकता है। तो तब हम बिल्कुल अलोन हो जाएंगे इस पूरे रीजन में। ये बहुत मुझे खुद फील होता है, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ फील होता है कि हम जब अकेले रह जाएंगे तब कौन कर, हमारे मुसलमान कंट्रीज जो हम इनको मुसलमान कंट्रीज कहते हैं और अपने भाई समझते हैं,
इनकी गवर्नमेंट्स तो नहीं करेंगी, जैसे हमने गजा के साथ किया है वही हमारे साथ भी होने वाला है। Okay. ठीक, सायरा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। देखिए, हम क्रिटिकल एनालिसिस करने की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो हमारे पास हो रहे हैं ना, कि इसमें ना हमारी नॉलेज में भी एक चीज, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी नॉलेज में भी बड़ा इजाफा हुआ है। लाइक मुझे अब पता चला कि इवन इन द यूएन, अकॉर्डिंग टू द यूएन, पूरी इवैक्यूएशन का जो एक प्रोसेस होता है रेफ्यूजी का, वो पूरा है जो हम फॉलो नहीं करते। पता है, हम इस सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। that this is something that I learned about it. ठीक है, तो it was just in one liner. Yes, Abdul Hadi, you can continue. जी, adding on to that point. Yeah, हाँ, let's. एक अब्दुल्ला यूसुफ से क्वेश्चन लेके then we'll move on. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, ये अभी तकरीबन ना 4-5 वीक पहले जो है ना, मैंने इंटरव्यू एक सुना है उनका, अफगानिस्तान के एक जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ही है मेरे ख्याल से। तो वो उन्होंने इस बात का कहा कि उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि ये पाकिस्तान जो है ना क्यों इस तरह जो है ना अचानक डिसीजन लेके जो है ना रेफ्यूजीज को सबको निकाल रहा है, तो उन्होंने जो बात यानी बड़ी डिफरेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा था कि ये जो कैनाल हम कोस्ट टापा इरिगेशन कैनाल जो बना रहे हैं, पाकिस्तान हम पे ये प्रेशर डाल रहा था बड़े टाइम से कि आप इसका जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टॉप कर दो, क्योंकि इस पे उनके जो है ना ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भी जो है ना अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि वो जो रिवर है उस पे उनका क्लेम भी है। तो इस पे उनका जो है ना पॉलिटिकल जो है ना उनकी भी आपस में चल रही थी थोड़ी सी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये हमें जो है ना कंस्ट्रक्शन का स्टॉप करने के लिए कह रहे थे, और ये सिर्फ इसीलिए जो है ना यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने तो पर्सनली आई हैव नॉट हर्ड दिस। डॉक्टर लारेब और Noor, you have heard about this? No, I didn't hear the question actually. He has asked कि that अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा कि अब अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तान को, that is because to build pressure on अफगानिस्तान कि वो to build pressure on Pakistan. Yeah, Afghanistan. No, to build pressure on Afghanistan. Okay. To stop construction of Coast Tapa Canal. Yeah, canal की कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, बट जो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसके मुखालिफ है ना, पाकिस्तान उसके मुखालिफ है। वो कह रहे हैं कि ये मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इनके तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान की वजह से कर रहे हैं। अब ये तो मुझे इस तरह अभी इसका नहीं पता, मैं यही इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली बताया कि असल जो इशू है वो यही है कि हमें पाकिस्तान जो है मना कर रहा है, कह रहा है कि ये आप जो है ना नहीं बनाओ, क्योंकि इस रिवर पे जो है ताजिकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है कि ये जो है ना रिवर मेरा, ये पानी मेरा। या लेकिन हमें फिर उसकी डिटेल्स में जानी पड़ेंगी, उस पे फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। And how can we just delve into that topic right now? Okay. Okay. ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ साथ। Thank you. Okay. Thank you. You can fill the feedback. जी. Okay, I think we'll continue थोड़ा before taking more questions. To negotiate with the Pakistanis on any issue regarding the status of either the line or the border, etc. Many experts are seeing this as yet another huge humanitarian crisis that's looming over the world, Mr. Saleh, because the Taliban government is currently not in a position to take care of these refugees. Their economic condition is already bad and will worsen post this exodus that's now been triggered. How should the world look at this?
First of all, with all due respect, I hope you do not call them Taliban government. They are not a government, because government has a definition, and the Taliban do not merit that definition. They do not have merits of a government. They are in control of Afghanistan. That control is, as I said, through a conspiracy, which is now faltering. As to do they have the capability, resources to cope with this situation? Of course not, because the Taliban so far has been caring about the Taliban. I read a 10-20 page decree by Mullah Haibatullah, and if you want, I can send it after this conversation. It's the mandate and the terms of reference for their clearance commission, or what we call purge commission. They say the following 4 categories should be in the system. Those who fought prior to collapse of the Republic, 2 relatives of those who were killed fighting for the Taliban, 3 infiltrators who were in the Republic but they were registered with us, 4 those groups who had registered with us and they were operating under disguise for various purposes inside the Republic territory. Except these 4 categories, everybody else should be treated as suspect. This is a document signed by Haibatullah. I can send you after this interview. They are looking at people of Afghanistan as suspects, except the Taliban and their families. 40 million Afghans are suspects for the Taliban. How can we expect this group to show care, sympathy for the returning refugees? And as I said, Pakistan is exploiting this messy. There are reports that the Taliban. Okay. Another thing that एक और चीज हमने फिर नोटिस की, जो हमने पहले भी नोटिस की, जहां पाकिस्तान इज एक्सप्लॉइटिंग पे अमरुल्लाह साले की वीडियो कट ऑफ हो गई. गोइंग उससे थोड़ा सा बैक, रिपोर्टर हैज आस्क्ड कि दुनिया को इसको कैसे देखना चाहिए. तो पहले तो अमरुल्लाह साले ने कह दिया कि Taliban government ही यही है, and this mandate that he is talking about, personally I have not been able to find. If anybody else has been able to find, you can let me know, but personally I have not been able to find. And even I didn't find it. मैंने इसकी बड़ी रिसर्च की, ये मैंडेट मिले मुझे 4 पॉइंट्स जो ये मेंशन कर रहा है वो मुझे भी नहीं मिली. ना कोई वीडियो में है, ना कोई मिनिस्टर भी नहीं कह रहा इस तरीके से, कोई अफगानिस्तान का स्पोक्स पर्सन इस तरीके से नहीं कह रहा. तो अब तक हो सकता है कहीं हो, बट जहां तक हमने रिसर्च किया हमें तो नहीं मिली. तो फैक्ट चेकिंग इस पे और करनी चाहिए. दिस कुड बी फॉल्स, वी डोंट नो. तो यहाँ पे बट ये है, द क्वेश्चन इज why is he trying to play Taliban like that? क्यों वो पाकिस्तान को इस क्यों वो तालिबान को इस फेक लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. खैर, तालिबान हैज नॉट, देखिए कोई भी रेफ्यूजीज अगर कहीं है, कोई दूसरे कंट्री में है, एंड आप उनको वापस भेज रहे हैं, तो यू हैव टू एटलीस्ट लेट द कंट्री नो कि ओके, और let them prepare for some time, considering they are not a government. या वो government है, आप recognize करते हो नहीं हो, but they are ruling Afghanistan as of now. अब do you guys think it is fair to do that, to first say अगर वो government नहीं भी है और हम refugees भेज रहे हैं वापस, to just send them like that to the border and not let the Taliban at least prepare for their arrival? Do you have any thoughts on this? क्या आप लोग क्या सोचते हैं? Do you have any questions? Take the comment from Ahmed. Yes. I think. अच्छा, इस इंटरव्यू से एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो है, ये मतलब जब गनी की हुकूमत थी तो तब ये थे नायब सदर, तो अभी इनसे इंटरव्यू करने का कोई तुक भी तो नहीं बनता. एक बात ये भी है ना.
कि आप आके क्यों, आप अगर अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेड होते तो फिर कोई बात होती नहीं, लेकिन अभी तो नहीं, आप बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, लेकिन ये अभी इंटरव्यू हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही है, बट दिस इज बीइंग एयर्ड एंड हाउ इट इज बीइंग एयर्ड और क्या क्या बातें हो रही है, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? I'll take. I think we should take Muslima. Yes. Yeah. Okay. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। I just want to add कि जब भी आप इस तरह के इंटरव्यूज देख रहे होते हैं तो ये जो स्पीकर्स होते हैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी सर्च करना होता है, सो यू लर्न कि ये फैलेसिस क्यों यूज हो रही है और कहाँ कहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। जी, इससे मतलब लाइक 2% अगर ट्रू होगा तो उसमें से 90% दे विल एड अप। अपनी आर्ग्यूमेंट को रिलायबल करने के लिए they do share some facts to attract more audience, but वो उनको लगता है कि जब ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया then they manipulate according to their own agenda। अब ये जो अरमानो सोले हैं, he is quite famous, हामिद करज़ई की गवर्नमेंट में थे, और when he fled with America, ये Americans puppet government थी, and when they fled, तो at that time जितना करप्शन और जो डॉलर्स पे, we have all gone through those news। तो इनका ऑलरेडी इनका अफगान में जो है इतना कोई रिस्पेक्टफुल नहीं है। ये उस एरिया में कंसिडर किए जाते हैं जो इंडियंस के साथ इनका काफी क्लोज कोलैबोरेशन रहा है, और वो जो पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिकन की, ये उसके स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं। सेकंड, सिस्टर ने अभी आके बात की थी कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, तो ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस के बिकॉज केपीके और बलूचिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पर ये सबसे ज्यादा देवर ओवरऑल देवर रिजाइडिंग एवरीवेयर, बट जहाँ इनको थोड़ा एक्सेप्टेंस मिली थी वहाँ पर इनको थोड़ी एक्सेप्टेंस थी। वहाँ पे इनकी रिश्तेदारियां भी थी, लाइक दे गॉट मैरिड टू सम पाकिस्तानी पीपल्स एज वेल, और फिर उनकी वहाँ क्लोज बॉन्डिंग और रिलेटिव्स भी थे। तो अब वो इसको हाइप क्रिएट करके ऑब्वियसली वही जो अभी सिस्टर ने बात की थी फॉल ऑफ ढाका, मुझे वही ट्रेंड यहाँ पे फील हो रहा है। अब एक क्रिएट किए जा रही है, हेट्रेड तो बहुत अरसा पहले से क्रिएट की जा रही थी, एक पहले से नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। जैसे वो पठान के पाकिस्तान में कोमली पठान या बलूचिस्तान के लोगों का एक नैरेटिव, एक इमेज बिल्डअप हुआ है कि दे आर स्टूपिड, और वही इंडिया का नैरेटिव है, वो अमेरिकन का, बिकॉज दे फियर देम, बिकॉज दोज आर द पीपल दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू रूल देम। तो उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि आप रिडिकुल करते हैं उस इमेज को जिससे आप डरते हैं, जिसकी एक आजाद सोच होती है। तो ये तो इनका एजेंडा जो है वो तो सिर्फ ये कि मैनिपुलेट करना, जिसका फायदा उठाना है, क्रिएट करना और लोगों में और एक नफरत पैदा करना। और सेकंड ये कि जो दूसरी ब्रदर ने किया पॉइंट रेज किया है कि टू पुट द प्रेशर ऑन तालिबान गवर्नमेंट, दैट इज सो राइट, बिकॉज अभी तालिबान गवर्नमेंट को जब ये ट्रम्प वाला हुआ तो दे प्रिटेंड अमेरिकन के जी ये हम लोग अपनी ट्रूप्स को इस वजह से लेके जा रहे हैं बिकॉज अब वी आर डन विद दिस। बट वो ये है कि उनका इकोनॉमी पे भी था, उन्होंने न्यू वॉर स्टार्ट करनी थी, जो कि अब हमें पता चल चुका है कि वो अफगानिस्तान से क्यों निकले, उनको फोकस करना था पैलेस्टीन पे। और यहाँ से वो जब निकले तो वो इसको ग्रो भी नहीं करने देना चाहते, जैसे हम लोग सपोजिटली फ्री कंट्री में रह रहे हैं, इन द सेम वे दे डोंट वांट टू लेट देम एंजॉय द फ्रीडम। तो आप देख रहे हैं कि जैसे वो दे लेफ्ट, उसके बाद से अटैक होना शुरू हो गए, दाइश भी एक्टिव हो गई, और उसके साथ अब ये जो पाकिस्तान और तालिबान की उस वक्त की गवर्नमेंट की थोड़ा सा एक डेवलप हो रहा था बॉन्ड, वो उन्होंने वहीं पे एंड किया, गवर्नमेंट ही पूरी चेंज हो गई। और अब जो है दोनों के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है कि तालिबान को फुर्सत ना मिले देखने की अपनी गवर्नमेंट को डेवलप करने की, और ऑब्वियसली कि दे आर यूजिंग देयर ओल्ड पपेट फॉर दैट। तो जी,
आपका बेसिकली पॉइंट ये है कि तालिबान की गवर्नमेंट डेवलप ना हो, इसलिए ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं on Afghanistan. That is your point. Want them to remain weak. Yeah, want them to remain weak, ridiculing them and showing them in a fake light. जैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं उनके बारे में. Exactly. अब देखें जब ये रशिया से जब सोवियत यूनियन से वॉर विन की थी, तो उन्होंने अपने पपेट्स जिनको इन्होंने यूज किया था, दे मर्डर ऑल ऑफ देम. और वो रीजन क्या थी? वो यही फियर था कि दे डोंट वांट देम टू फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बड़ा क्लोज ब्रदरली रिलेशनशिप डेवलप हो सकता था. एंड दे फियर उम्मा. दे बेसिकली they want us to kill each other and die, whether it's sect, whether it's countries, whether nationalism, so that they can all enjoy. Sorry. Okay, thank you. Thank you, Muslima. I really like to appreciate here कि आपने जो है ना बड़े अच्छे से सीए को माइंड में रखते हुए आपने बिल्कुल बैकग्राउंड बताए हैं स्पीकर्स के. ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी होती है ताकि शुरू से हमें ये चीज़ पता हो कि हम इस बंदे को किस तरह से एनालाइज करना है. ठीक है, फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम. और फिर अगर वो अपने स्टेटमेंट्स में कोई एरर दे रहा है, अपनी रीजनिंग में तो कोई एरर दे रहा है, बिकॉज दोज रीजनिंग एरर्स आर द फैलेसीज. ठीक है, तो हम इस सेशन में तो ज्यादा फैलेसीज एंड बायसेस कवर नहीं कर पाए, बट आई होप कि हम नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करें. एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फैलेसीज ऑफ द बायसेस और काउंटर आर्गुमेंट किस तरह से हम बिल्डअप करें. ठीक है, yes, Abdul Hadi, you can carry on. Okay. Leadership will not be able to speak much because their extended families have their roots in Pakistan. A lot of the Talib leaders keep going to Pakistan every week. This proximity and their own personal self-interest will stop them from taking any hard decisions. Absolutely. Absolutely. We have to distinguish between populistic rhetoric. Sometimes these Taliban social media influencers do, and the deeds and the policies and the actions. In private, Taliban are puppets of Pakistan government as they were prior to the collapse of the republic. In public, they know that if they if they talk like a puppet, it will be adding more salt to the wounds of the people. So sometimes they make these hollow and empty, as you said, media statements. The foreign minister of Taliban, Motaqi's family, has a very, very large business extending from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi. Mullah Yaqub's family lives there. The Haqqanis don't know the language of Afghanistan. When Saraj Haqqani travels to provinces of Afghanistan, he uses a translator. This is the first time in our history that the so-called interior minister uses translator to communicate to the very people of Afghanistan. Okay. Here he has mentioned that Siraj Haqqani, the interior minister, uses a translator. I did fact check this. There is a video of Siraj Haqqani speaking. I'm going to play that because he just said that. This is a video of Siraj Haqqani. ځانونه نوی راښکاره د رسنیو په مخ کې ځانونه نوی راښکاره کړي د تاسو د باور د جوړولو د اعتماد د جوړولو دپاره خدای تعالی دغه افتخار او سعادت موږ ته هم راوبخو تاسو ته هم در وبخو چې د تاسو په مجلس غونډه کې نن موږ په ښکاره د رسنیو په مخ کې به راښکاره شوي ځکه د تاسو د اعتماد د اطمینان د جوړولو دپاره چې تاسو په دې پوه شئ چې موږ څومره قدر Basically, a bit of fact checking. Let's move back to where he was. Their minds and the connectivity between education and various education institutions. Provinces of Afghanistan, he uses a translator. Okay, he also mentioned about Pakistan. Government as they were prior to the collapse of the republic.
in public, they know that if they talk like a puppet, it will be adding more salt to the wounds of the people. So sometimes they make these hollow and empty, as you said, media statements. The foreign minister of Taliban, Muttaqi, he has mentioned also, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान puppet है of the US, but वो खुल के बोल नहीं सकता, and Pakistan is at fight with the Taliban. Do we have any thoughts on this? Yeah, let's take a comment from Sadia. Yeah. Sadia, I've sent you a request. जी ये अभी एक सिस्टर ने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिया ना कि ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी बेसिकली वो है क्या, और मेन जो पॉइंट हमें भी नजर देखना चाहिए, सबसे पहले इंडिया में इंटरव्यू लिया जा रहा है और लिया किससे जा रहा है, तो ये दोनों ही क्यों हाईलाइट करेंगे और किस चीज को हाईलाइट करेंगे? ऑब्वियसली ये वीक पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान को हाईलाइट करेंगे ना। तो यहाँ पे यही इन्हीं चीजों को, जैसे आपने कहा ना कि मैनिपुलेशन हो रही है, हाँ ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, फैलेसीज यूज कर रहे हैं और बेसलेस बातें कर रहे हैं। जैसे अभी ये इशू जो रेफ्यूजीज का आया, तो अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर जो है वो उन्होंने ऐलान किया कि मैं जाके पाकिस्तान में बात करूंगा, और गालिबन वो आए भी, आई डोंट नो, उसकी मैंने वो रिसर्च नहीं की ज्यादा कि क्या हुआ। तो ये चीजें इनको तकलीफ इसलिए दे रही हैं और इसमें इंडिया इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान का जो है वो, अफगानिस्तान इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बेस रही है आगे के सारे इलाके के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने में। तो अफगानिस्तान में अगर इंडिया की ऐसी हुकूमत आ जाती है जो पाकिस्तान से सिंपथीज रखती है या पाकिस्तान रिलेटेड है, तो उससे इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। उसके अलावा अमेरिका को तो नुकसान है ही है क्योंकि अफगानिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ी बेस थी यहाँ पे, और पाकिस्तान को उसने हमेशा यूज़ किया है अपने पर्पसेस के लिए, चाइना के खिलाफ भी और रशिया के खिलाफ भी। तो ये सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने एक जो है वो झटके में सारी की सारी खत्म कर दी कि जब यहाँ से जाता है हमारा ISI DG और वो खबरें चल रही हैं कि जी ये देखें अफगानियों के साथ इनकी, तो इन्होंने नई हुकूमत आते ही उनके साथ ताल्लुकात बना लिए, जो कि बाकी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जिसको ये भी कह रहा है कि जी वो हुकूमत ही नहीं है, उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है और उनकी कोई पावर ही नहीं है, उनसे क्या बात करनी है। तो ये अब क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान को वीक शो कर रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में ये, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, जो दो बंदे बैठे हुए हैं उनका मेन मकसद ये है कि जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करके इनको जो जितनी सिंपथीज इसके खिलाफ हम गेन कर सकते हैं वो करें। तो माइंड सेटिंग, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर वाली जो है ना वो बेसिक चल रही है इनकी। जी बिल्कुल। All right, Abdul Hadi, we should pause here and we should continue this topic within the next session, part 2. और अभी जो 2 hands raise हैं उनके ले लेते हैं comments and then फिर हम article का काम we will move on that to the next week. Okay. जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो सारा ये इशू चल रहा है ना, इसकी सबसे बड़ी रीजन जो समझ आती है उसमें ये है कि पाकिस्तान को ये आइसोलेट करना चाहते हैं पॉलिटिकली, कि हम लोगों के मुस्लिम कंट्री से भी ताल्लुकात खत्म हो जाएं, और बाकी ये कि ऑलरेडी ही मुस्लिम कंट्रीज जो है, जैसे पहले भी बात हुई कि कश्मीरी भी, हालांकि पाकिस्तान डे 1 से इनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आज भी अगर आप पूछे जाए कश्मीरियों से तो वो पाकिस्तान को कभी भी अच्छा नहीं समझते। और सेम अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ, हमने उनको तकरीबन 60 इयर्स से हम उनको पाल रहे हैं, आई थिंक 40 इयर्स हो गए, लेकिन आज तक कभी आप किसी अफगानी से नहीं सुनेंगे कि वो पाकिस्तान को उसने अप्रिशिएट किया हो और कहा हो कि हाँ आपने हमारी मुश्किल वक्त में हेल्प की और हम आपको एज अ मुस्लिम कंट्री अच्छा समझते हैं, या हम एक ब्रदरहुड का जो एक साइन हमने उनको दिया था, उन लोगों ने हमें उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया कभी भी, और उसी वजह से जो थे इन लोगों ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया।
हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, स्मगलिंग जैसे बात हुई। उसके अलावा ये डॉलर्स की सूरत में जो था वो अपनी सारी वहां पे भेजा जाता था अफगानिस्तान, और उसकी वजह से हमारे रुपये की कीमत जो थी वो डाउन जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया। और वहां अफगानिस्तान को जो था वो लोग बेटर कर रहे थे और हमारे कंट्री को वीक कर रहे थे। तो हम लोगों का मुस्लिम कंट्रीज का आपस में जो एक ताल्लुक जैसा भी है, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान ने हर जगह हेल्प की है। और हमें क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान हमेशा सबसे आगे होता है, हेल्प करता है। अब ये चाहते हैं कि हम लोगों की आपस में मुस्लिम्स की जो है एक जो कह लें कि इत्तेहाद है जो, वो खत्म किया जाए और हर एक मुस्लिम कंट्री को दूसरे मुस्लिम कंट्री से अलग करके उनको सबको आइसोलेट कर दिया जाए। क्योंकि अमेरिका पहले ही अनाउंस कर चुका है, जब उन्होंने इराक और अफगानिस्तान पे हमला किया तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और वो अब ये चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को वो बाय वॉर नहीं खत्म करें, बल्कि उनको पॉलिटिकली इतना वीक कर दें, उनको ऐसे इश्यूज में फंसा दें कि वो आपस में वो विद इन अपने कंट्री ही अपने मुश्किलात में जो है ना वो खत्म हो जाए कंट्री खुद, और उसमें उसको कुछ भी करना ना पड़े, ना उसका नाम आए। क्योंकि पहले ऑलरेडी जब उसने अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया तो उसको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह से उन्होंने ये अब स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो मुस्लिम कंट्रीज को किसी और तरीके से वीक करते हैं और हम लोगों को इतने इश्यूज में फंसा देते हैं कि हम खुद खत्म हो जाएं। मैं ये अभी तक समझी हूं कि ये इंटरव्यूज जो होते हैं, ये इसका यही रीजन है कि पाकिस्तान को बदनाम करें, और बाकी जो थोड़ा बहुत मुस्लिम कंट्रीज के दिल में ये बात है कि पाकिस्तान एक अच्छा है हेल्पफुल स्टेप लेता है, वो भी उनको नेगेटिव उसमें वे में ले जाएं कि रिफ्यूजीज को क्यों निकाला गया। हालांकि ये स्टेप हमें बहुत अरसा पहले ले लेना चाहिए था, ये कोई गलत स्टेप नहीं था और हर कंट्री यही करती है, लेकिन उसको नेगेटिव कर रहे हैं। अब जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और ले रहे हैं, उन दोनों से पूछा जाए कि अगर आपके मुल्क में कोई रेफ्यूजी आ जाए तो क्या आप उसको अपना सिटीजन बना लेंगे या नहीं बनाएंगे? तो सबका यही होगा कि एक लिमिट तक आप उसको रखते हैं और उसके बाद आपको रिफ्यूजीज को निकालना ही होता है, जाना ही पड़ता है अपने मुल्क। तो ये इसका यही पॉलिटिकल रीजन मुझे समझ आया जहां तक। All right, Jazakallah for adding those points. Acha, we have a lot of hands raised for now. I don't know if we have time. All right, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। बस्ताम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक्चुअली आर्टिकल भी पढ़ा था जो आप लोगों ने सेंड किया था अल जजीरा का, और बेशक अभी देखा जाए तो इससे ये भी समझ आई कि हाँ अमेरिका इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है, क्योंकि 1.7 मिलियन अफगानी को डिपोर्ट कर रहे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रूल है पाकिस्तान में कि अगर इतने पहले अफगानिस्तान से लोग आए हुए थे तो वो 1.7 मिलियन अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड है उनके सिस्टम में, तो उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान इन जनरल बहुत गलत तरीके से इनको निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको उसी विद इन फ्यू डेज आपने इनको निकाल दिया उधर, और फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऊपर से विंटर सीजन चल रहा है तो और मुश्किल है उनको। तो जिस तरह से अल जजीरा ने तस्वीरें कैप्चर की हैं आर्टिकल में, तो ये इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई अफगानिस्तान, जो जितने भी अफगानी हैं। और मेनली यही समझ आता है कि इसमें यही है ताकि अफगानिस्तान जो है, ताकि वो अपनी जो गवर्नमेंट पहले ही इतने हालात उनके मुश्किल इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पर, वो ऊपर ही ना जा सके, ताकि वहाँ से कुछ ना हो सके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इजराइल और जो फ़लस्तीन की जो चल रहा है अभी गाजा में जो हो रहा है, उससे डाइवर्ट करने के लिए भी पाकिस्तानी अवाम को, ताकि वो इस टॉपिक को उठाएं ताकि वहां से डाइवर्जन हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड एक और भी चीज हो सकती है वैसा, आपको नहीं लगता कि इट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस कि अभी जो शहबाज शरीफ जो थे हुकूमत में, ठीक है, गवर्नमेंट में थे, तो उसके बाद अभी जो एक निगरान हुकूमत आई है,
तो डू यू थिंक कि उसका मैंडेट है कि वो ऐसे डिसीजंस ले? बिकॉज ये एक अच्छी रिसर्च हो सकती है कि अगर क्या उसका मैंडेट है कि इस तरह की बड़ी डिसीजंस लें और फिर टाइम भी उन्हें ना दे, और फिर वो फैमिलीज जो यहाँ पे 40-45 ईयर्स से रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो ऑफन कंसिडर नाउ देमसेल्फ एज पाकिस्तानीज, तो उनके साथ ये थोड़ी ज्यादती भी हो रही है कि वो कैसे वाइंड अप करें. So can it be the mandate of this so-called the Nigeria government, जो black government है? That is the question that I will leave everybody with. मैंडेट मतलब क्या उसका काम है ये करना? So this is something that we can research on. ठीक है? Yes, Ikra. All right, we're going to move towards the end of the session. Lareb, you're going to add something? Assalamu alaikum, all of you. I am Lareb Arsh from the Critical Analysis Research Team. First of all, I want to make some points clear to all of you. This is a discussion forum and not a lecture forum. Hence, not an information session. जितनी भी आपको information या data provide किया गया है, be it video or be it an article, आप सब ने वो देख के पढ़ के आना है, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए. अगर हम इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन सेशन समझ के आ रहे हैं तो हम अपना और दूसरों का जो हम इतना टाइम इस सेशन में दे रहे हैं वो ज़ाया कर रहे हैं. अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे टू द डाटा प्रोवाइडेड, उस जितने भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा डाटा है वो उसी प्रोवाइडेड डाटा को सपोर्ट करने के लिए या उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपने या हमने लाना है. उससे हमने डिविएट कभी भी नहीं होना. एंड क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए हमने वही जो 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे हम हमेशा बात करते हैं, उसी तरह से ही हमने चलना है. अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जैसे जो फ्रांस में हिजाब पाबंदी पे हुई थी क्रिटिकल एनालिसिस के सेशंस. इसी तरह अफगानिस्तान के अब्दुल कहार बल्खी का जो इंटरव्यू था, आप वो वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं. क्योंकि कमिंग टू करंट टुडेज सेशन, सिवाय आखिर में कुछ बंदों ने डिस्कस किया है, अदरवाइज नोबडी डिस्कस्ड कि स्पीकर जो कि जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था उनका क्या इंट्रोडक्शन था, रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है बाय यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग रिफ्यूजीज के क्या राइट्स हैं उन कंट्रीज में जिन पे उन्होंने पनाह ली हुई है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंडर रिफ्यूजीज को किसी मुल्क से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता. 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या है जो यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है. इसके अलावा रिफ्यूजीज का क्या इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सिक्योरिटी सिचुएशंस पे, या फिर पाकिस्तान का क्या रोल था अफगानिस्तान की जितनी भी वॉर्स हुई हैं अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, या कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था, इंडिया का क्या रोल रहा इस सारी सिचुएशन में, तालिबान को कौन कब बने, किसने बैक किया. अफगानिस्तान की थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री, आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों में से किसी ने डिगिंग किया है उसको या नहीं किया. अगर हम ये सब नहीं करते और सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियंस पे रहते हैं तो फिर क्रिटिकल एनालिसिस कभी भी नहीं होगा. दिस इज व्हाई आई एम नाउ सीइंग कि ऑडियंस बहुत ड्रॉप कर गई है, क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे. यहाँ पे हम अपनी इमोशनल बातें कर रहे हैं या हम अपनी ये जनरल पब्लिक की ओपिनियन दे रहे हैं, हम फैक्ट्स नहीं लेके आ रहे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो में हमारा 22 चेक होना था. हम बाकी वीडियो में तो 22 चेक करते ही हैं स्पीकर्स के, यहाँ पे हमारा 22 चेक होना था वाइल डूइंग द रिसर्च, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं एंड ऑब्वियसली हम हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने हर इम्पैक्ट से देखना कि क्या पाकिस्तान ये डिसीजन सही ले रहा है या नहीं ले रहा. हम इस पे फाइनल अपनी ओपिनियन तो बाद में ही फॉर्मुलेट करेंगे, लेकिन पहले हमने कुछ रिसर्च जरूर करनी थी कि पाकिस्तान क्योंकि रिफ्यूजी एक्सपल्शन एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि जिसमें काफी स्टेप्स होते हैं. एकदम से एक लॉ के अंडर या एक पब्लिक ऑर्डर के अंडर रिफ्यूजी एक्सपल्शन नहीं हो सकती.
तो आई होप कि आप ऑडियंस भी ज़्यादा करेंगे। ऑडियंस मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट सेशन में ऑडियंस फर्दर ज़्यादा हो और एंगेजमेंट भी ज़्यादा हो, लेकिन आप लोग फर्दर रिसर्च भी करें। और उसी आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक सीए क्वेश्चनियर भी अब साथ ऐड किया है, ताकि रिसर्च करते हुए आपको आइडिया हो कि आपने किन किन पॉइंट्स पे रहते हुए रिसर्च करनी है, और वो असेसमेंट क्वेश्चनियर अपने फायदे के लिए कि हमारी रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इकरा आप कंटिन्यू कर लें। Yeah, I'll take over. Thank you, Lare, for clearing the definition of critical analysis and what that actually is. Secondly, एक comment आया था जिसमें groups की बात की थी कि someone wants to know if these discussions are going on in any group. So I just want to tell all of you that you are in IMS. उस IMS के अंदर you are in different groups in different communities. तो अगर आपका even if your group is dead, तो उसको revive करें. Start discussing these things. Geopolitics and history को discuss करना शुरू करें. You are the team leader, so take the lead in your own group. वहाँ पे discussion start करें to raise the IQ of everyone. And secondly, another announcement that we are going to change the timing of critical analysis session because I think 8 p.m. is more suitable for everyone, especially in winter timing. So next session और उससे आगे इंशाल्लाह अगर खैर रही तो फिर 8 p.m. Pakistan time is going to be the time that is set for the critical analysis session. और जो यहाँ पे लारेब ने questions रखे हैं, I want everyone to search on them and bring the answers in the next session, inshallah. And thank you so much everyone for joining. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.